اس کے بعد جموں کشمیر کے حالات بدل گئے اسی ماس رنگنگ کی وجہ سے. یہاں پہ آپ کو پتا ہے ملٹنسی یا آپ کو پتا ہے ابھی تک وہ چل رہا ہے. لیکن پرائم مدعا جو ہے یہاں کے لوگوں کا, جموں کشمیر کے لوگوں کا, کہ ہم اسٹیٹ ہوڈ چاہتے ہیں. ہمارا راشن جو ہے پر فیملی اگر 5 بندے ہیں تو اس کو 2 ہی بندے کا راشن مل رہا ہے, 3 کا نہیں ملتا ہے. امید بس خدا تم کر سوچ کی تم کر پنہ مفاد خاطر, تم کر پنہ کرسی ہند خاطر, سانہ خاطر نیران کہین. نئے ایم ایل ایز بنیں گے یا آپ کے لیے آپ کو ان پر بھروسہ نہیں ہے؟ کچھ بھی نہیں, کوئی بھروسہ نہیں ہے. یہ خالی اپنے لیے. ہاں جو ڈیولپمنٹ تھوڑی بہت ہوئی ہے یہاں پہ ان 5-6 سالوں میں وہ تو ایل جی نے کروائی ہے تھرو سینٹرل گورنمنٹ آف انڈیا. جہلم ٹاکس میں آپ کا استقبال ہے. میں ہوں آپ کی ہوسٹ انیکا نذیر. آج کی ڈاکیومنٹری کشمیر کے الیکشنز کے بارے میں بنا رہی ہوں. امید ہے آپ اس ڈاکیومنٹری کو دیکھیں گے اور انٹروسپیکٹ کریں گے کہ کشمیر میں الیکشن کے حوالے سے لوگوں کے من میں کیا سوال ہے اور کیوں ہے. ایکچولی میں نے لاسٹ الیکشن جو دیکھا, میں اس وقت 10th میں پڑھتا تھا 1987, جس میں کہ ماس ریگنگ ہو گئی, یو مے بی نوئنگ اٹ. تو چونکہ اس وقت میں مائنر تھا میں نے ووٹ نہیں کیا. اس کے بعد جموں کشمیر کے حالات بدل گئے اسی ماس ریگنگ کی وجہ سے. یہاں پہ آپ کو پتا ہے ملٹنسی یا آپ کو پتا ہے ابھی تک وہ چل رہا ہے. تو موقع نہیں ملا کیونکہ الیکشن بائیکاٹ کالز ہو رہے تھے وہ یہ. تو میں پہلی بار لائف میں ووٹ کاسٹ کر رہا ہوں اور اس کا ریزن یہ ہے کہ اس وقت آپ دیکھیں گے 1987 کے بعد پہلی بار لوگ بڑی ماترا میں ووٹ کاسٹ کرنے کے لیے نکل رہے ہیں. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم سینٹرل گورنمنٹ سے خوش ہے یا یہاں پہ ڈیولپمنٹ ہے یا وہ ہے یہ ہے. اگر ہم وکاس یا ڈیولپمنٹ کی بات کریں گے, روڈز کی بات کریں گے, جیسے لال چوک کو پورا آپ دیکھ رہے ہیں روڈ ہی ختم ہو گیا ہے. اس ڈیولپمنٹ کے لیے یہاں کا تحصیلدار ہی کافی ہے, پھر تو ایل جی بھی ٹھیک ہے. ہمارا یہ ماننا ہے لوگوں کا کہ 19 اگست کے بعد ہمارا تو اسٹیٹ ہوڈ بھی گیا. تو پیپل آر فیلنگ سفوکیشن, انسلٹ, ہیوملیشن. آج جو 10 سال کے بعد الیکشن ہو رہے ہیں اور تقریباً 7 سال کے بعد لوگوں کو اپنی سرکار چننے کا موقع دیا جا رہا ہے, تو لوگ کچھ ریلیکس فیل کر رہے ہیں. جو وہ سفوکیشن فیل کر رہے ہیں آج ان میں خوشی محسوس ہے کہ ہم اپنی سرکار چنیں گے. اور لوگ اس لیے بھی ووٹ ڈال رہے ہیں, جو سب سے بڑی جو پرائم مدعا ہے وکاس کا مدعا نہیں ہے. وکاس کا پرابلم کہاں نہیں ہے, ہندوستان کے ہر اسٹیٹ میں چھوٹا بڑا وکاس کا مسئلہ تو ہوتا ہی رہتا ہے, لوگ سیٹسفائی نہیں ہوتے ہیں. ہاں یہاں الگ بات ہے کہ یہاں جو ان ایمپلائمنٹ ہے وہ زیادہ, اس کی جو وہ زیادہ ہے دوسرے اسٹیٹوں سے. لیکن پرائم مدعا جو ہے یہاں کے لوگوں کا, جموں کشمیر کے لوگوں کا, کہ ہم اسٹیٹ ہوڈ چاہتے ہیں. اسی لیے ہم اپنی سرکار چن رہے ہیں, چاہے پی ڈی پی کانگریس آ جائے یا جو بھی کوئی آئے, کیونکہ ہر ایک پارٹی نے یہ وعدہ کیا ہے کہ ہم پرائم ہمارا جو رہے گا مینیفیسٹو میں دیا ہے کہ ہم اسٹیٹ ہوڈ کے لیے فائٹ کریں گے. ایون پردھان منتری صاحب اور امت شاہ ہوم منسٹر صاحب نے بھی ریسنٹلی اپنے الیکشن کمپین میں بولا ہے کہ ہم اسٹیٹ ہوڈ دیں گے. سینٹرل گورنمنٹ اپنا وعدہ پورا کرے گی, اسٹیٹ ہوڈ دے گی. اگر انہوں نے اسٹیٹ ہوڈ نہیں دیا, مجھے لگتا ہے, میرا اوپینین ہے کہ لوگ انہیں جس طرح سے یہ سرکار بنا رہے ہیں یہ گرا بھی سکتے ہیں. اگر ہمیں اسٹیٹ ہوڈ نہیں ملا تو اس سرکار کا کوئی مطلب ہی نہیں ہے. تو مجھے نہیں لگتا ہے پھر سرکار زیادہ دیر تک رہے گی. ہم یہ چاہتے ہیں کہ یہاں اور بھی مدعے بہت ہیں, کیونکہ جموں کشمیر جو اسٹیٹ ہے دوسرے اسٹیٹوں سے الگ ہے, یہاں کمپلیکس ایشوز ہے. ہم یہ چاہتے ہیں کہ ایسی ڈیولپمنٹ سے پہلے ہمیں یہ چاہیے, میرا کوئی نوجوان بھائی پی ایس اے میں نہیں ہونا چاہیے, یو پی اے میں نہیں ہونا چاہیے, جیسے پہلے 1989 سے پہلے ہوتا تھا. تو تبھی میں بولوں گا کہ کشمیر میں وکاس آیا ہے اور شانتی آئی ہے. وہی سب سے پہلے میسج یہی ہے. انشاءاللہ جب آپ اسمبلی میں جائیں گے, سب سے پہلے مدعا جو ہے ہمارا, ہمیں اسٹیٹ ہوڈ چاہیے. بس باقی مدعے وہ تو تحصیلدار بھی کرے گا. جی میرا نام بشیر احمد ہے. ہمارا مدعا یہ ہے میم کہ ہم دور دراز گاؤں میں رہتے ہیں. ہمارا ایک تو ہمارا واٹر کا مسئلہ ہے, پانی کا مسئلہ ہے. دوسرا ہمارا راشن جو ہے پر فیملی اگر 5 بندے ہیں تو اس کو 2 ہی بندے کا راشن مل رہا ہے, 3 کا نہیں ملتا ہے. ہمارا مقصد یہ ہے کہ ہم دیہڑی دار لوگ ہیں, ہمارے وہاں راشن کم از کم 5 کے 5 کو ملنا چاہیے اور پر بندے کو 5 kg ملتا ہے. ہمارا مدعا یہ ہے کہ ہمیں کم از کم 10 kg 11 kg پر بندے کو ملے تاکہ ہمارا گزارا. باقی جو ہے گاؤں میں جو ہے روڈ ایکٹیویٹیز ٹھیک نہیں ہے.
रोडों में इतना मसला है कि जो भी गाड़ी नई खरीदता है उसको महीने के बाद वो गाड़ी का लॉस हो जाता है। एक तो वो मसला है, दूसरा पानी का मसला है। हमारे गांव में ऐसी डेवलपमेंट नहीं होती है, शहर को ज़्यादा तवज्जो दी जाती है और गांव में जो है गांव के लोग जो है शहर वालों की हेल्प करते हैं, मजदूरी करते हैं, हर काम करते हैं, शहर की डेवलपमेंट के लिए खड़े होते हैं। गांव में तवज्जो गवर्नमेंट नहीं देती है। हमारा यही मुद्दा है कि अगली ये जो सरकार बने कम से कम गाँव की डेवलपमेंट हो, और जो टूरिस्ट है हमारे गाँव में अलग अलग जो जगह हैं, बहुत अच्छी जगह हैं, उनको टूरिस्ट में लाया जाए और वहाँ तक रोड दी जाए और वहाँ का भी डेवलपमेंट हो, और जो गरीब तबका है उसको भी दिहाड़ी अपनी मिले और अच्छा काम हो। देखिए मैम, हम रजौरी पुंछ में रहते हैं, हम यहाँ के नहीं हैं, तो कश्मीर का मुझे लग रहा है कि बेहतर हैं, हालात तो बेहतर हैं, अच्छे हैं। हम लोगों को यही उम्मीदें हैं कि जो नई गवर्नमेंट बने, नई सरकार बने, किसी की भी बने, तो उसमें हमारा जो है मसला हल हो, हर एक मसले पे नज़र दी जाए। झेलम टॉक्स का सबसे बड़ा मकसद ये है कि हमारे आम कश्मीरी जो है वो अपनी आवाज़ को बेबाकी से और बेखौफ होकर सामने रखें और अपने जो मुद्दे हैं उनको भी सामने रखें। हमारे साथ एक अंकल जुड़े हैं। आप दुनिया के किसी भी एनालिस्ट को कश्मीर लेकर आए और उससे कहें कि कश्मीर के बारे में बात करें, जो यहाँ का लोकल इंसान आपको बोल सकता है वो कोई दुनिया का एनालिस्ट आपको नहीं बोल सकता। तो हमारे साथ एक अंकल जुड़े हैं, इन्हें कश्मीर की हिस्ट्री के बारे में आपसे, मुझसे और दुनिया के सबसे बड़े एनालिस्ट से ज़्यादा पता होगा। आज हम इनसे बात करेंगे और इनसे जानेंगे कि इलेक्शंस को कश्मीर में किस तरीके से देखते हैं। अस्सलाम वालेकुम अंकल। क्या उम्मीद छो ये लोकल लीडर तिमन निश क्या उम्मीद छो? उम्मीद बस खुदा तम कर सोच कि तम कर पन्ने मुफाद खतर, तम कर पन्ने कुर्सी खतर, सानि खतर नेला कहें तम कुछ दो सानि खतर मरने खतर तैयार हो। अख गरीब मरान यह क्या हिस्ट्री तह सान ज़्यादा सो पाई, तह क्या बसान लीडर पे त्रो वोट करना सान मे अंदाजी की कर पे खतर लागन लोग हथ से मुलाजिम मोकलो मसल ये पे जाए से क्या बस एज अ कोशुर मतलब कशर क्या करो तेल नौजवान वस तुम वो ये स्टेजस पे तुम वो सोरे वनकस बह 20 वरी 24 नौजवान सह क्या कर सह कस पे कर भरोस खुदा पे भरोस कहें पे कुर्सी खतर क्या लड़ान क्या वोट त्रावान बह गोस जाए क्या तमाशा वुचन क्या दल है फलान जाए सर दिवान 100 रुपये फलान 500 रुपये दिवान अब नवा तावन तुम वो कौमस तब मनो ये तम रटन 500 सह फेरान तथी कौम गो लड़ने खत गो मिनिस्टर गो सह इस कौम खत मजे हम लड़ाई नबर कर कुर्सियों खतर। क्या बात कही आपने? देखिए ये एक आप देखिए ये कश्मीरी जज्बा है कि लीडरशिप जो है वो फ्री एंड फेयर होनी चाहिए। मैंने पहले भी ये कहा है कि आज हम इतने सालों के बाद डेमोक्रेटिक प्रोसेस को कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, अपना वोट दे रहे हैं, तो ये इलेक्शंस फ्री और फेयर होने चाहिए। हमने सुबह से 3 वीडियोज़ ऐसे देखे, एक जम्मू से आ रहा है जहाँ पे ब्राइबिंग हो रही है, एक पांथा चौक श्रीनगर से आ रहा है, एक गांदरबल साइड से आ रहा है। 3 ऐसे अलग पॉलिटिकल पार्टीज़ के जो मेंबरान हैं वो लोगों को ब्राइब कर रहे हैं, उनको पैसे दे रहे हैं और उनका वोट खरीदने की कोशिश कर रहे हैं। आप मुझे बताइए खुदा के वास्ते, 1987 में भी यही रिगिंग हुई जब लोग मास वोटिंग कर रहे थे, जब लोग जो है अपना वोट एक्सरसाइज कर रहे थे, उसके बाद उनके साथ धोखा हुआ, उनके साथ रिगिंग हुई और उसके बाद इंसर्जेंसी कश्मीर में शुरू हुई। और एक और भाई हमारे साथ जुड़े हैं यहाँ पर कश्मीर में, इनसे पूछेंगे कि इलेक्शन से इनको क्या एक्सपेक्टेशंस है और हमारी लोकल लीडरशिप जो है जिन्हें हम वोट करने जा रहे हैं उनसे क्या एक्सपेक्टेशंस है इनको। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम? मेरा नाम है हिलाल अहमद। आप मुझे ये बताइए कि आज सेकंड फेज ऑफ इलेक्शन हो रहा है कश्मीर में, सेंट्रल कश्मीर। जी जी। क्या उम्मीद रखते हैं इलेक्शन से? देखिए 47 से लेके आज तक तो इलेक्शन हुए हैं यहाँ पे, उससे क्या मिला हमें? ठीक है ना, हमें पास्ट में जाना है, उससे क्या मिला हमें? तो इस इलेक्शन में हमें कोई एक्सपेक्टेशन है ही नहीं। ठीक है, हाँ ये होगा कि जितने भी कैंडिडेट हैं उनमें से जो जीतेंगे वो असेंबली में जाएंगे, वो नए मुलाजिम लगेंगे, 90 मुलाजिम। कश्मीर को क्या होगा, कश्मीरी को क्या होगा, वो तो उनके साथ कुछ नहीं है। आपको क्या लगता है जो ये नए MLAs बनेंगे या आपके लिए आपको इन पर भरोसा नहीं है? कुछ भी नहीं,
कुछ भी नहीं, कोई भरोसा नहीं है, ये खाली अपने लिए। आप हमें बताइए ना, आप हिस्ट्री देखिए, 49 से यहाँ पे इलेक्शन हुए हैं, तो क्या किया है इन्होंने, आप मुझे बताइए। हाँ, जो डेवलपमेंट थोड़ी बहुत हुई है यहाँ पे इन 5-6 सालों में, वो तो एलजी ने करवाई है थ्रू सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ठीक है। ये तो बस इन्होंने वोट लिया है, बस मसला ख़त्म। फिर 5 साल के बाद क्या हो जाएगा, 5 साल के बाद ये फिर डोर टू डोर जाएंगे, बताएंगे हमें गलतियाँ हुई है, एक मौका और दीजिए, तो फिर 5 साल के ये तो कंटिन्यू चल रहा है मसला। आपको लगता है कि फिर इनको इन्होंने ये ट्रिक पता कर ली, हाँ ट्रिक पता कर ली है? देखिए, सबसे बेवकूफ़ होता है लोग होते हैं, इनको पता है इनके ट्रिकों के बारे में। तो फिर देखो, मुसलमान वो होता है कि जो कशिर पर वन सर्फजी वाज निश खेवान 2 लट टोफ, ईमान वाला वही होता है जो 1 लट खे टोफ 2 लट टोफ खे। तो ये तो डेवलपमेंट वो होती है। देखो, जब किसी मसले का हल होता है, तो वो बेसिक इशू होते हैं, ठीक है ना। जब बेसिक इशू मसला हल हो जाएगा तो सारे मसले हल हो जाएंगे, डेवलपमेंट भी आएगी, सब कुछ आएगा, नौकरियां भी आएगी। सारे तो नौकरी नहीं ना लगेंगे, ठीक है ना। जब सारे नौकरी करेंगे तो मजदूरी कौन करेगा, है कि नहीं। तो पढ़ाई लिखाई भी इसलिए ज़रूरी नहीं कि हमने पढ़ा है लिखा है, अब डिग्रियाँ हमारे पास है कि हम कोई अफसर बने, ये ज़रूरी नहीं है। वो मजदूरी भी कर सकता है, बिजनेस भी कर सकता है। मेरा नाम मुस्कान नरगिस है और मैं श्रीनगर से हूँ और मैं एक ऑथर हूँ और रिसेंटली मैंने अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट की है और अभी मैं मास्टर्स कर रही हूँ। बिल्कुल, मैंने वोट कास्ट किया अपना और ये मेरा फर्स्ट वोट था कि सो बेसिक मकसद यही है मेरा वोट कास्ट करने का कि हमने देखा कि जैसे पिछले 5 सालों से यहाँ पे कुछ हद तक अमन बरकरार है, वो खून खराबा बंद हो गया है। मैं चाहती हूँ कि इन फ्यूचर एज एन यूथ मैं यही चाहती हूँ कि इन फ्यूचर भी यही चीज़ कंटिन्यू रहे और जो भी हमारे मसले हैं यूथ के या बड़े बुजुर्ग लोगों के बाकी चीज़ें, मैं चाहती हूँ कि गवर्नमेंट उन पर फोकस करे और वो चीज़ें हाईलाइट करे और इनके लिए एक आई कुड से सोल्यूशन जो है वो आइडेंटिफाई करे और जो चीज़ें हमारे लिए बेहतर है वही करे। और मैं चाहती हूँ कि एक फेयर गवर्नमेंट बने, इस वजह से मैंने अपना वोट कास्ट किया है। बहुत मात्रा में लोग जो है पार्टिसिपेट कर रहे हैं इलेक्शंस में, क्योंकि सब लोग अवेयर हो गए हैं कि हमारे साथ क्या हुआ, कैसे कुछ लोगों ने या कुछ पार्टीज ने मिलके अपने घर भरे आई कुड से, और हमने जो कश्मीर का यूथ है उनको कैसे पीछे रखा, घरों में बंद करके रखा, हड़ताल बाकी चीज़ें। और जो यहाँ पे बहुत पहले रेगिंग हुई थी, आई डोंट नो द एग्जैक्ट डेट, उस टाइम पे क्या चीज़ें हुई और कैसे मिलिटेंसी को बढ़ावा मिला उस चीज़ से, और उसमें क्या हुआ, हम यूथ जो है कश्मीर का उनको ही सिर्फ नुकसान हुआ। तो मैं चाहती हूँ वो चीज़ें ना हो, यहाँ पे एक फेयर गवर्नमेंट बने, हमारे जो भी मसले हैं उनको सुलझाया जाए। सो एज एन यूथ मैं चाहती हूँ कि कश्मीर को हम एक बड़े लेवल पे देखें, क्योंकि आपने देखा कि कश्मीर में बहुत ज़्यादा टैलेंट है, लेकिन कहीं भी हम बाहर जाते हैं अपने टैलेंट को रिप्रेजेंट करने, तो सबसे पहले सवाल यही होता है कि क्या आप पत्थरबाज हैं, तो वो चीज़ नहीं होनी चाहिए। यहाँ के बच्चों में भी बाहर वाले बच्चों के समान बराबर में ही टैलेंट है, तो वो लोग भी आगे इंटरनेशनल लेवल पे जाए, नेशनल लेवल पे अपने देश को रिप्रेजेंट करें। हम भी मतलब ये हक रखते हैं कि हम रिप्रेजेंट करें अपने देश को। सो हाँ, मैं चाहती हूँ कि एक बड़े लेवल पे मैं कश्मीर को देखूँ आने वाले समय में। तो ये था कश्मीर का ओपिनियन इलेक्शंस के रिगार्डिंग, जिसमें उन्होंने अपना दर्द बयान किया, जिसमें उन्होंने अपने ओपिनियंस बयान किए, जिसमें उन्होंने वो सब बातें बयान की जिनसे उनके दिल को ठेस पहुंची है। एक बार फिर से वो भरोसा करने जा रहे हैं इस डेमोक्रेटिक प्रोसेस पे, पार्टिसिपेट करने जा रहे हैं उस प्रोसेस में जो उनको ये हक देता है कि वो अपना लीडर खुद चुने। लोगों ने अपना हक तो अदा कर लिया, लेकिन अब देखते हैं कि हमारे लीडर्स जो आगे हमारे रिप्रेजेंटेटिव्स बनेंगे,
वो अपना हक कैसे अदा करते हैं। देखते रहिए झेलम टॉक्स।